Today we are going to start the emerging situation of our economy, that is poverty. Poverty means a situation in which a person is not able to fulfill the basic amenities of life, that is food, shelter and clothing. Poverty means a situation in which a person is not able to fulfill the basic requirements of life, that is food, shelter and clothing. Now starting the topics one by one. First heading is poor. Poor means the same situation, a person who is not getting the minimum necessities of life. This poor can be classified into two parts. One is urban poor, one is rural poor. One is urban poor, one is rural poor. Urban poor means the person who are residing in the urban areas. कुछ लोग ऐसे हैं जो कौन से एरियाज में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज के अंदर रह रहे हैं, बट स्टिल उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो इस कैटेगराइजेशन के अंदर आ सके. इट मीन्स वो अर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं. जस्ट एन एग्जांपल, वर्ड यूज करता है स्वीपर्स, कॉबलर्स. मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाते. इसमें कुछ कैलोरीज का सिस्टम भी चलता है. एक बंदा जो 2000 कैलोरीज बर्न नहीं करता तो किस कैटेगराइजेशन में आ जाएगा? अर्बन पुअर के कैटेगराइजेशन में आ जाएगा. रूरल पुअर. रूरल पुअर मींस people those who are living in the rural areas. Just an example, they were landless farmers, or those persons those who are not having their properties, or side by side अगर वो 2400 कैलोरीज बर्न नहीं करते तो किसकी कैटेगराइजेशन में आ जाएंगे? रूरल पुअर की कैटेगराइजेशन में आ जाएंगे. This all can be we can study with the help of expenditure, that is 800 per month of the people living in the rural area and 1000 something for the person those who are living in the urban areas. की कैटेगराइजेशन था पुअर का. पुअर को टू कैटेगराइजेशन में क्लासिफाई किया. वन इज अर्बन पुअर एंड वन इज रूरल पुअर. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, one is relative poverty. One is absolute poverty and one is relative poverty. Now we'll start discussing it one by one. But before starting this topic, हमें एक नया concept समझना पड़ेगा, poverty line. Poverty line means a situation that classify a person into two parts. One is poor, one is non-poor. जो इस poverty line से पहले हम किस कैटेगराइजेशन में आ जाएंगे? poor के अंदर. और जो इसके बाद हम किस कैटेगराइजेशन में आ जाएंगे? non-poor के अंदर. Poverty line exact measurement नहीं है poor का. Poverty line exact measurement नहीं है poor का, because it only classifies a person into poor and non-poor. It means जो लोग यहाँ हैं वो भी non-poor है, जो higher income group है वो भी non-poor है. So poverty line एक exact classification नहीं है, but still हमें poverty line के according ये concept को समझना पड़ेगा. Types of poverty. Poverty को two parts में classify करा, absolute poverty और relative poverty. Absolute poverty means a situation जहाँ पर बंदे को उसकी basic necessities fulfill नहीं होती और वो poverty line से पीछे रहते हैं. Relative poverty means a situation in which comparison is done. Comparison between the nations, comparison between the persons. से मैं सोच लेता हूँ कि मैं धीरू भाई अंबानी के comparative poor. इसे क्या बोला गया? Relative poverty बोला गया. Poverty in the terms of standard, reputation और income, उसे क्या बोला जाएगा? Relative poverty बोला जाएगा. जिसमें comparison start हो जाता है, उसे क्या बोला गया? Relative relation start करना हमने start कर दिया. Now the next heading, causes of poverty. What are the main situations or the main problems of poverty in India? First main problem is low level of national product. It means that production in our economy is comparative low. Production in our economy is comparative low as due to the population. It means that per person availability of goods is quite low as due to the population. उसे क्या बोला गया? Low level of national product बोला गया. फिर word use करते हैं बच्चे low rate of growth. It means that GDP is rising by 5%. GDP is rising by 5%, whereas population is rising by 2%. It means the net growth in the economy is 3%. तो word use करता है low rate of growth. Next is heavy pressure of population. Rising population is the main situation of poverty in India. क्या word use कर रहा है? Rising population is the main source of poverty in India. तो word use करता है heavy pressure of population. Inflationary spiral. Inflationary spiral means the rise in the prices.
Inflationary spiral means the rise in the prices. It means that demand in the economy is more than supply. It means demand ज़्यादा है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है बट उतनी सप्लाई नहीं है। उस सिचुएशन में क्या होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाएगा, या वर्ड यूज करेगा इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस राइज नहीं, तो वर्ड यूज करता है कॉन्टिन्यूस इन्फ्लेशनरी स्पाइरल या फिर कॉन्टिन्यूस राइज इन द प्राइसेस। नेक्स्ट वर्ड यूज करेगा क्रॉनिक unemployment and underemployment means a situation in which unemployment and underemployment both situations were rising. Our economy is capital deficit economy. हमारी इकोनॉमी के पास कैपिटल की कमी है, तो ये भी मेन सिचुएशन है पॉवर्टी का। Lack of able and efficient entrepreneurs. This is the same situation कि टेक्निक्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पॉवर्टी राइज होती जा रही है। Outdated social institutions की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी चीजें कम थी। These were the situations or these were the main reasons of causes of poverty. And this you can write down as per your convenience. कोई भी चैप्टर्स के नेम भी लिख सकते हैं सीधा, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल और आने वाली सिचुएशंस, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और बाकी सारी सिचुएशंस आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की जगह। नाउ द सिचुएशंस, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए, 4 हेड्स में क्लासिफाई करा। कन्वर्टिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, combating poverty by improving the distribution of income, combating poverty through population control, other measures enhancing the quality of life of the poor. First main problem is combating poverty through GDP growth. It means that flow of goods and services should be risen in the economy. Flow of goods and services को बढ़ाना चाहिए इकोनॉमी के अंदर कैसे ना कैसे, so that availability of goods should be abundant. तो वर्ड यूज करा है so that availability of goods should be abundant. इतनी बात समझ में आ रही, तो वर्ड यूज करता है बच्चे combating poverty through GDP growth. Next heading, combating poverty by improving the distribution of income. तो दो मेजर्स यूज किए, one is fiscal measures, one is legislative measures. फिस्कल मेजर्स बोलता है बेटा फाइनेंशियल मेजर्स को। इसके अंदर एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, इस पॉलिसी का नेम था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। पॉलिसी का नेम क्या था, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी मींस द टैक्सेस वर इम्प्लाइड ऑन द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो टैक्सेस है वो किसके ऊपर लगाए जाएंगे, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर लगाए जाएंगे, और जो भी वहां से इनकम होगी, वापस वर्ड यूज कर रहा हूं, टैक्सेस ऑन रिच, और जो भी इनकम होगी that income to be given to the poor in the form of subsidies. वापस fiscal measures means taxes के पॉलिसीज है, फाइनेंशियल एड की पॉलिसीज है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर फॉलो करता है, रिच के ऊपर टैक्सेस लगा देता है, जो टैक्सेस से इनकम आएगी वो पुअर को दे देता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। नेक्स्ट वर्ड यूज करता है लेजिस्लेटिव मेजर्स। इट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर दिए। क्या वर्ड यूज कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर दिए, दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट। क्या वर्ड यूज कर रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए आगे। नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स राइज हो जाएगा, इसकी वजह से पॉवर्टी भी फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट अदर मेजर्स एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। क्या क्या और सोर्स अडॉप्ट करने चाहिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, कैसे ना कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके सो दैट जीडीपी ग्रोथ हो सके। स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल मींस डिमांड सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। जो जो कॉजेस थे ना उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को खत्म कर दो। मेथड कौन सा यूज करो, लेबर इंटेंसिव, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज लेबर सरप्लस एंड कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, कि पुअर को एक मिनिमम नीड्स प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, उसके लिए काफी सारे प्रोग्राम्स पे अडॉप्ट किए गए। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स, दोज रीजन्स व्हिच वर बैकवर्ड, उनके ऊपर मेन फोकस करना चाहिए। तो डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन का क्लासिफिकेशन, के लाइन को क्लासिफाई कैसे करता है, पुअर को किस किस कैटेगराइजेशन में क्लासिफाई करता है, और सम सिचुएशंस पर जैसे क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो सारी सिचुएशंस हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।